Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today my topic is phylum Cnidaria, which is also called as Coelenterata. The general characters of the Coelenterata are they are aquatic, mostly marine, a few freshwater. It means that they live in seawater and they are also found in rivers. The second character of the Coelenterata is that they have tissue level or organization. That means their digestion, excretion, reproduction, these systems occur at the level of tissue level, not at the organ level. They do not have an organ system. इनमें organ system नहीं होता है. मान इनमें stomach नहीं होता है, इनमें heart नहीं होता है, इनमें intestine नहीं होता है. So we can say they do not have organ system. अमन मशन organ system आसा की. Many of them are free floating. Some are sessile and some are colonial. जो ये coelentrates है, they are free floating. ये पानी में free floating पाए जाते हैं. जैसे कि कोई इंसेक्ट होता है, जैसे कोई फिश होती है, वो फ्रीली पानी में तैरती है. इसी तरह ये coelentrates पानी में भी फ्रीली फ्लोट करते हैं. सम आर sessile. Sessile मीन्स ये किसी जगह फिक्स होता है. फिक्स माने होता है किसी सबस्ट्रेटम पर ये कोई सबस्ट्रेटम है. इस सबस्ट्रेटम पर ये ऐसे ही चिपक जाते हैं. दिस इज कॉल्ड sessile. Some are in colonical. Colonical means they are found in colonies like this. 1, 2, 3. These are colonies. इस तरह ये colonies में भी होते हैं. They are radially symmetrical. Symmetrical means radially symmetrical means अगर देखो this is a type of coelenterate. We can cut it into two pieces. One part is equal to the next part. For example, these coelentrates, for example, अगर हम इस coelenterate को लेंगे इस तरह, ये एक coelenterate है. मान लो इसको हम दो हिस्से करेंगे, इसको सिमेट्री करेंगे. ये है A और ये है B. A B के बराबर होगा. They are radially symmetrical. ये इनमें दो हिस्से बराबर हो जाते हैं. They are diploblastic. Diploblastic means इनके दो लेयर होते हैं. इनकी बॉडी वॉल इज मेड अप ऑफ 2 layers. इसकी बॉडी जो वॉल है ये 2 लेयर की बनी होती है. जैसे outer layer is called ectodermis and inner layer is called gastodermis. The body wall of the coelentrates are made up of 2 layers. इसमें 2 लेयर होते हैं, ectoderm and gastoderm. Ectoderm buroni layer होती है. This, for example, this is a typical coelenterate. LS longitudinal section polyp, typical coelenterate है. इसकी जो epidermis है, this is the epidermis. और epidermis और epidermis जो buroni layer जो है, outer layer है, this is called epidermis. और epidermis के अंदर जो layer है, that is called gastodermis. Gastodermis और epidermis के दरमियान एक layer है, that is called mesoglea. ये mesoglea बीच वाली layer, इसमें भी कुछ cells होती है. हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं. जो ये coelentrates है, they are diploblastic. Diploblastic means their body wall is made up of 2 layers. The first layer, outer layer, that is ectoderm. The inner layer which surfaces the coelentron, this is called gastoderm. This between the ectoderm and the gastoderm is a small layer. This is called mesoglea. इस ectoderm में पहले हम ectoderm पर डिस्कस करेंगे. ectoderm जो है, इसमें भी कुछ किस्म के सेल्स पाए जाते हैं. ectoderms में जो सेल्स होते हैं, इसमें एक सेल है, one type of the cell that is called epitheliomuscular cell. They provide protection and act as muscles.
इसमें जो एक्टोडर्मिस में इसमें एक किस्म की एक सेल होती है दैट इज कॉल्ड एपिथेलियोमस्क्युलर सेल। ये प्रोटेक्शन देते हैं इस एनिमल को। ये बाहर वाली लेयर में पाए जाते हैं। और दूसरे सेल जो है इंटरस्टिशियल सेल, दे आर रिजर्व सेल्स एंड एक्ट्स एज टोटिपोटेंट सेल्स। टोटिपोटेंट सेल्स जो होती है ये होती है बिटवीन एक्टोडर्मिस, या मान लो हम एपिडर्मिस जिसको हम कहते हैं, इसका दूसरा नाम कहते हैं, दूसरा नाम हम इसको कहते हैं एक्टोडर्मिस। एक्टोडर्मिस और गैस्ट्रोडर्मिस के बीच में जो लेयर है दिस इज मीजोग्लिया। ये जो मीजोग्लिया है, इस मीजोग्लिया में और एक किस्म की सेल है दैट इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल सेल। दे आर रिजर्व सेल्स एंड एक्ट एज टोटिपोटेंट सेल्स। जो मीजोग्लिया में एक किस्म की सेल्स होती है, ये इंटरस्टिशियल सेल्स है, ये किसी वक्त एपिडर्मिस सेलों की भी काम करते हैं, किसी वक्त ये गैस्ट्रोडर्मिस सेलों के भी काम करते हैं। सो these interstitial cells are also called totipotent cells. How they are totipotent? They are so totipotent because they do not have a particular function. They participate either of the ectodermis cells or they participate in the gastrodерमिस cells. फिर है तीसरी सेल जो है, जो इस इसमें एक्टोडर्मिस में होती है, दैट इज कॉल्ड निमेटोब्लास्ट्स। निमेटोब्लास्ट भी एक यहाँ पर एक गैस्ट्रोडर्म या मीजोग्लिया में बीच वाली लेयर में एक सेल होती है। दे हैव अ सिटिंग ऑर्गन एंड एक्ट्स एज अ डिफेंसिव एंड ऑफेंसिव ऑर्गन। इसमें एक जो वन ऑफ द सिलेंडर दैट इज कॉल्ड फाइसीलिया। द फाइसीलिया इज आल्सो कॉल्ड प्रोतुगीज मैन ऑफ वार जो होता है। उसमें एक डिफेंसिव ऑर्गन होता है, वो इसी निमेटोब्लास्ट से ग्रो होता है। उसका जो ओरिजिन है, जो डिफेंसिव ऑर्गन होता है इसमें, जिससे ये सिटिंग करता है किसी एनिमल को पानी में, दैट सिटिंग ऑर्गन develops from the nematoblast. This nematoblast is also found in the epidermis, or we can say it is also found in the ectodermis or the epidermis. फिर है चौथी सेल जो होता है एपिडर्मिस में, दैट इज द नर्व सेल्स। नर्व सेल्स फॉर्म द प्रिमिटिव नर्व सिस्टम। इसका जो नर्व सिस्टम है वो बना हुआ है नर्वस सेल्स का। फिर है और एक फिफ्थ सेल है दैट इज सेंसरी सेल्स। दे आर सेंसरी इन फंक्शन, और वो तो टच रेस्पॉन्स को फील करते हैं। और दैट सेल विच इज फाउंड इन द एक्टोडर्मिस और एपिडर्मिस, दैट इज कॉल्ड सेंसरी सेल। दिस वाज अबाउट द एक्टोडर्मिस और एपिडर्मिस of this particular type of coelenterate. The outer layer which we are discussing, this is this coelenterate. This has the two layers. Body wall is made up of two layers: ectodermis or ectodermis and the gastrodermis. These cells, the ectodermis, which constitute the ectodermis. These cells are epitheliomuscular cells, interstitial cells, neuroblast cells, फिर है नर्व सेल्स, और फिर है सेंसरी सेल्स। अब इसके बाद दूसरी लेयर जो होती है गैस्ट्रोडर्म। गैस्ट्रोडर्म है इंटीरियर लेयर which faces the coelentron, gastrodermis. This gastrodermis is made up of gastrodermis bears the following types of cells. जो ये गैस्ट्रोडर्मिस होता है, इस गैस्ट्रोडर्मिस में भी फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सेल्स होती है। पहली सेल जो है दैट इज कॉल्ड न्यूट्रेटिव सेल। न्यूट्रेटिव सेल जो होती है, दे कैरी आउट इंट्रासेलुलर डाइजेशन। ये इनसाइड द सेल जो डाइजेशन होती है उसको कैरी करते हैं, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रेटिव सेल। फिर है ग्लैंड सेल। ग्लैंड सेल में भी होते हैं, इस गैस्ट्रोडर्मिस लेयर जो है इसमें और एक सेल होती है दैट इज कॉल्ड ग्लैंड सेल। दे सिक्रीट डाइजेस्टिव एंजाइम्स फॉर एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। इससे क्या होता है कि जो ग्लैंड सेल होती है ये एंजाइम सिक्रीट करते हैं, जैसे कि हमारे ह्यूमन जो सिल्वरी ग्लैंड है इसमें एक एंजाइम निकलती है दैट इज कॉल्ड टाइलिन।
टाइलिन कन्वर्ट स्टार्च इनटू माल्ट और शुगर। इसी तरह इसमें जो गैस्ट्रोडर्म जो होती है, गैस्ट्रोडर्म में एक सेल होती है, गैस्ट्रोडर्म में एक सेल होती है दैट इज कॉल्ड न्यूट्रेटिव that is called a nutritive cell. They carry out intracellular digestion. इंट्रासेलुलर डाइजेशन करते हैं न्यूट्रेटिव सेल में होती है इधर। और तीसरी सेल पहली सेल जो है इसमें गैस्ट्रोडर्म में जो पहली सेल है दैट इज द न्यूट्रेटिव सेल। दे कैरी आउट न्यूट्रेटिव सेल जो होती है इस गैस्ट्रोडर्म में वो इंट्रासेलुलर डाइजेशन करती है। और जो एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन करती है बॉडी में दैट इज कॉल्ड द ग्लैंड सेल। ग्लैंड सेल ये एंजाइम सीक्रेट करते हैं, जैसे कि पेनक्रियास से हमारे ह्यूमन बींग्स में पेनक्रियास से एंजाइम सीक्रेट होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड से पेप्सिन और रेनिन सीक्रेट होती है, इस तरह सिल्वरी ग्लैंड से जैसे कि टाइलिन सीक्रेट होती है। इसी तरह जो इस गैस्ट्रोडर्म में दूसरी एक सेल है दैट इज कॉल्ड ग्लैंड सेल। ग्लैंड सेल जो होती है ये भी पाई जाती है इस गैस्ट्रोडर्म में। ये ग्लैंड सेल जो होती है ये गैस्ट्रोडर्मिस में होती है, ये सिक्रेट करती है जूस। उस जूस में एंजाइम्स होती है वो हेल्प करती है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन में। मान लो जो सेल के बाहर में जो डाइजेशन होती है उसमें जो हेल्प करती है उस सेल का नाम है ग्लैंड सेल। दिस ग्लैंड सेल इज आल्सो फाउंड इन द गैस्ट्रोडर्मिस ऑफ द सिलेंड्रॉन। ये साइकॉन हो सकता है, ये पेनाटोला भी हो सकता है, ये पेनाटोला भी हो सकता है, ये साइकॉन भी हो सकता है। ये बस ग्लैंड सेल जो होता है इसमें डाइजेशन में हेल्प करती है। इसके बाद है इस गैस्ट्रोडर्म में और एक सेल होती है दैट इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल सेल। दे आर टोटिपोटेंट सेल्स। जिस तरह एक्टोडर्म में टोटिपोटेंट सेल्स होते हैं इसी तरह गैस्ट्रोडर्म में भी टोटिपोटेंट सेल्स होती है। टोटिपोटेंट सेल्स वो होती है जो कोई भी काम करते हैं, बैरोनी लायर की सेल्स का भी काम करते हैं, अंदरून लायर की सेल्स का भी काम करते हैं। इनका एक डिस्टिंक्टिव फंक्शन नहीं होता है। They carry both of the functions, outer cellus function and inner cellus function. These cells are called totipotent cells. Though interstitial cells in जो मिजोआ इसमें होता है गैस्ट्रोडर्मिस में होती है that are called totipotent cells. These totipotent cells are also found in the epidermis and in the gastrodermis. फिर इसमें और एक सेल है दैट इज नर्वस सेल जो गैस्ट्रोडर्मिस में दे फॉर्म द नर्वस सिस्टम। इस गैस्ट्रोडर्मिस में और एक सेल होती है दैट इज कॉल्ड नर्वस सेल। फिर है इसमें और एक सेल होती है दैट इज कॉल्ड सेंसरी सेल। दे आर कंसर्न्ड विद द सेंसरी फंक्शन इन दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। So far as the digestive system of this cylindrata is concerned, the digestive system is complete. They have the mouth, they have the cylindron, बीच में इनमें cylindron होता है। Mouth also acts as anus. जो the wire from the mouth functions as the anus also. So they are the one and the same opening, which where digestion occurs. Through which the digestion occurs, it is the mouth. Through which the excretion occurs. तो में जो इसमें mouth होता है, mouth anus का भी काम करता है। फिर इसमें respiration जो है, respiration and excretion occurs by the process of diffusion of the body surface cells. Body surface जो cells होती है, इसका diffusion जो इसमें जो excretion होती है और respiration जो होती है वो जो होती है जो बॉडी की जो सेल्स होती है सरफेस सेल्स है। मान लो ये साइकॉन है, ये फॉर एग्जांपल ये साइकॉन है, ये साइकॉन है, इसकी जो बॉडी सेल्स है ये बॉडी सेल्स है, ये बॉडी सेल्स जो है ये बॉडी सेल्स जो है ये बॉडी सेल जो है ये करती है ये एक्सक्रीशन भी करती है, और रेस्पिरेशन भी करती है। इसकी बॉडी सेल्स जो होती है वो दोनों काम करते हैं, एक्सक्रीशन भी करती है और रेस्पिरेशन भी करती है। नर्वस सिस्टम consists of a set of nervous cells found in the mesoaglia.
स्टेटोसाइट इज ए सेंस ऑर्गन यूज्ड फॉर द बैलेंस। इसमें जो नर्वस सिस्टम होता है वो नर्वस सेल्स का बना होता है, फाउंड इन द मीजोग्लिया, ये मीजोग्लिया में पाया जाता है। स्टेटोसिस्ट इज एन सेंस ऑर्गन, इनमें एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ ऑर्गन होता है दैट इज कॉल्ड स्टेटोसिस्ट। दिस स्टेटोसिस्ट इज एन ऑर्गन which helps in the balance of an organ. This helps in the balancing of the organism in this while it is in water. When any type of this cylindrate, whenever it floats in water, it balances itself in water. The organ which helps us in the balancing itself, that organ is called stetocyst. Stetocyst is an organ. Stetocyst जो होते हैं, this is a sense organ which helps this cylindrate in balancing itself in the water. Skeletal, so far as the skeletal system is concerned, in human beings, skeletal system is made of bones, but in the skeletal system in cylindrates, it is horny or calcareous. ये horny हो सकता है या calcareous भी हो सकता है. Horny means it is made up of these spicules, which are made of silicon, or the it has this skeletal rough surface which is made up of calcium carbonate, the calcium carbonate layer. Though we can say the skeletal system in the cylindrates is two types, it is either horny or it is calcareous. फिर जो इसमें और एक पॉइंट है दैट इज सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑकर्स बाय द फॉर्मेशन ऑफ बड्स। इसमें बड्स पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज अ साइकॉन, ये साइकॉन जो इसमें बड होता है, दिस इज बड। इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है। Asexual reproduction takes place in some forms. Zygote develops into a larva called penula. इसमें जो इसमें asexual reproduction भी होती है, sexual reproduction भी होती है। जब इसमें sexual reproduction होती है तो zygote develop हो जाता है एक लार्वा में, that is called penula. इस लार्वा का नाम है पेनुला। पेनुला undergoes metamorphosis and changes into adult, और चेंज होता है, changes into adult, और एडल्ट में चेंज होता है। वही कि जो सिलेंड्रेट्स है इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इनमें बर्ड्स बनते हैं, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इनमें जो जाइगोट बनता है, जाइगोट से फिर एक लार्वा बनता है, दैट इज कॉल्ड पेनुला। पेनुला मेटामॉर्फोसिस हो जाती है, और मेटामॉर्फोसिस के बाद उसमें उसको वो एडल्ट बन जाता है। जिस तरह के हम जो पैलेट हेलमिंथीज है उनमें जो लार्वा बन जाता है, इसी तरह है बाकी जो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, उनमें हर एक में अपना एक एक किस्म का लार्वा होता है जो बाद में चेंज होकर एडल्ट बन जाता है। इसी तरह जो इनमें जो लार्वा होता है वो उस लार्वा का नाम है पेनुला। पेनुला चेंजेस इनटू एडल्ट while undergoing metamorphosis. These cylindrates exist in two forms, polyp and medusa. इनमें दो किस्म के हो सकते हैं ये, one is the polyp and second is the medusa. This was about the characters of the cylindrates, or we can say nidaria or cylindrates. Why the cylindrates are nidaria? इनमें एक cavity होती है that is called a cylindron, so they have the name cylindrata. As far as the classification is regarded, there are three classes of the cylindrators. Number one is hydrozoa, number second is scyphozoa, number three is anthozoa. So far as the first class hydrozoa is concerned, they occur in polyps. ये पोलिप की शक्ल में होते हैं, जैसे कि हाइड्रा है, ओवलिया है, फाइसिलिया है। This Phycelia, this is called the Portuguese war of man, Portuguese man of war. फिर है Scyphozoa, they occur in Medusa,
फॉर एग्जाम्पल ओरिल्ला। इसकी तरफ तीसरा जो है दैट इज द थर्ड क्लास जो है दैट इज कॉल्ड एंथोजोआ। एंथोजोआ के में बॉडी फीचर्स क्या होता है, बॉडी इज इन द पोलिप फॉर्म, बॉडी पोलिप में होती है। दे आर सिसाइल, सिसाइल माने हुआ ये इस तरह एक सबस्ट्रेटम है, इस सबस्ट्रेटम में ये ऐसे ही इस तरह होते हैं, चिपक के होते हैं, फिक्सड के तौर होते हैं। दिस दो जो एंथोजोआ में जो ऑर्गेनिज्म एनिमल्स आते हैं, सिलेंट्रेट्स आते हैं, वो उनमें एक है दैट इज पेनोटोला। ये पेनोटोला जो पाया जाता है ये होते हैं सिसाइल, ये किसी सबस्ट्रेटम पर फिक्सड होते हैं। मान लो ये पेनोटोला है, पेनोटोला है, ये किसी चीज़ पर फिक्सड होता है। दिस वाज ऑल अबाउट द सिलेंट्रेट्स, their general characters and classification. Thanks.